that's the purchase of that blood. और मुझे याद है कि एक ही चीज खुदावंद के खून से भी ज्यादा कीमती है, वो खुदावंद की दुल्हन है। Yesterday we had the privilege of visiting the tomb of our founder here in Pakistan. और कल मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान के फाउंडर की मज़ार पे, मज़ार गायब पे जाऊं। Qaid-e-Azam के मज़ार पे जाऊं। And it was a great honor for me to go and visit the tomb. और मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात थी कि मैं इस कौम के फाउंडर की जो है वो मज़ार पे गया। And enjoyed a little reprieve, a little bit of a relaxing time. और रिलैक्सिंग टाइम को एंजॉय किया, अपनी छुट्टी को एंजॉय किया। And how many ministers do we have present this morning? आज सो कितने खुदा के खादम यहाँ पर मौजूद हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं वहाँ पर हैं। Wonderful, wonderful. God richly bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे May God increase your service. और खुदावंद आपकी खिदमत को बढ़ाए। Amen. आमीन। May the Lord bless your congregations. खुदावंद आपकी कलीसियाओं को बरकत दे। And I feel very humbled to have you here listening to me. और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं इस मनादी को सुनने के But we're लिए। not here to hear from a man, we're here to hear from the Lord. और हम यहाँ पर किसी इंसान की सुनने नहीं बल्कि खुदावंद की सुनने हैं। My appreciation to Pastor Petrus एंड पास्टर पत्रस को हम सराहते हैं and for his family. और पास्टर पत्रस की फैमिली के लिए। They have certainly treated me royally. और उन्होंने वाकई जो है मेरे को शहजादों की तरह रखा है। And may God bless them accordingly. और खुदावंद उनको इसके मुताबिक बरकत दे। Because the Lord Jesus said, in so much as you've done it to the least of these my little ones, you've done it unto me. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो तुम मेरे छोटों के साथ करते हो मेरे साथ करते हो। Amen. We was also in the church with Pastor Samoon. और हम लोग भाई शमौन के चर्च में भी थे। And we certainly appreciated the welcome there and all the other churches that we have visited. और बाकी तमाम चर्चिस को, शमौन के चर्चिस को, ब्रदर अलमास के चर्च को और बाकी तमाम चर्चिस को सराहते हैं। Amen. आमीन। So we really appreciate that. और हम शुक्रगुजार हैं। I believe one of the most precious things that one servant of the Lord can do to another is to surrender his pulpit. और मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी चीज जो एक खादम दूसरे खादम के लिए कर सकता है वो अपना पुलपट देना है। So may the Lord ever help us to respect one another and to respect the pulpit. और खुदावंद हमें सिखाए एक दूसरे की इज्जत करना और पुलपट की इज्जत करना। This morning's message, I wanted it to be a continuation of the previous message. और आज सुबह का जो पैगाम है मैं चाहता हूँ कि इसको आगे लेके चला जाए। जो पैगाम मैं पहले शमौन के चर्च में दे चुका हूँ। We talked about the unrecognized presence of the Lord. और हमने जिस पैगाम पर मुनादी की थी वो था खुदावंद की हजूरी जो पहचानी ना गई। And I want to continue that thought. और मैं चाहता हूँ कि इसी पैगाम को आगे लेके बढ़े। And so we'll try to make this part 2 of that subject. और हम चाहेंगे कि इस हिस्से को हम पार्ट 2 बनाएं उसी पैगाम का। And you wouldn't understand perhaps what I will be speaking about today without listening to the first part. और शायद हो सकता है कि आप में से बाज़ औक़ात ना समझ सकें, पहला हिस्सा सुनने आपको ज़रूरी है कि पहला हिस्सा भी यूट्यूब पे And सुनें। vice versa. और बिल्कुल इसी तरीके से I believe the Lord has put this on my heart to help us better understand what we were speaking about in the previous service. और खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि इसको जो है मज़ीद आगे लेकर चला जाए ताकि हम इसे और बेहतर तौर पर समझ सकें। Now, if you have your Bibles, we're going to read in 2 different locations. और अगर आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस है तो हम 2 मुख्तलिफ जगहों से पढ़ेंगे। And I want to remind you that this message has a foundation. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैसेज की एक खास बुनियाद है। And the foundation is the written word of God. और जो बुनियाद है वो खुदा का लिखा हुआ कलाम है। And so we turn to, first of all, 2 Thessalonians. Where's the first Thessalonians? How many Bibles do we have present? I want to see your Bibles.
अपनी बाइबल्स को उठाएं, I want to count. अपनी बाइबल्स को उठा कर रखें। Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only 9 Bibles? 10? Now, I'm not talking about your cell phone. पहले भाई बताएं मोबाइल में नोट करके तो कह रहे हैं कि सेलफोन वाली बात नहीं, बाइबल वाली बात। How many of you have your Bibles also on your cell phone? और जितने लोगों के सेलफोन में बाइबल है वो हाथ उठाएं। Oh my. I'm disappointed. कह रहे हैं कि अच्छी बात नहीं है, I'm seriously disappointed. कह रहे हैं वाकई अच्छी बात नहीं। You must get the Bible. आप अपनी बाइबल मुकद्दस करिए। हालेलुया। If you was in a divine romance और अगर आप इलाही मोहब्बत में हैं and your boyfriend or your bridegroom to be, या जो आपका दूल्हा है या जो आपकी दुल्हन है he was to write you a letter, और वो आपको एक खत लिखने वाला होता, would you want to read it? तो आप नहीं चाहते कि आप उस खत को खोलते और पढ़ते? यस If you was really in love, और अगर आप वाकई उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते, surely you would want to read the letter from your bridegroom. और अगर आप वाकई दुल्हा की मोहब्बत में गिरफ्तार होते तो आप वो खत खोल के पढ़ना जरूर पसंद करते। Not only read it, but you want to know what it meant. और ना सिर्फ पढ़ते बल्कि आप जानना पसंद करते कि इसका मतलब क्या है। If you was really in love अगर आप वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो with that man, और अगर आपकी मोहब्बत उस शख्स से वाकई सच्ची होती, you was to get married to, क्योंकि आप उससे शादी करने जा रहे and you हैं really just could hardly wait, और आप बेसब्र हैं and he wrote you a letter. और उसने जो है आपको एक खत लिखा है, You just laid it aside and didn't even read it. लेकिन आपने उसको साइड पे रख दिया और पढ़ा नहीं, It would show that you're not part of this great divine romance. तो फिर इससे जाहिर होता है कि मोहब्बत फीकी है। So this morning, बस आज सुबह the Lord is admonishing us to read His love letter. खुदावन हमें तामदी करता है कि हम जो है उसके लव लेटर को पढ़ें। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा ने एक अजीम नबी को भेजा? How many really believes that God sent us a vindicated prophet? और कितने ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमें एक तस्दीक शुदा नबी भेजा है? Okay. Remember, याद रखें, it's not to the hearers only, but to the doers of the word. और ये जो है सिर्फ कलाम सुनने वालों के लिए नहीं है बल्कि उस पे अमल करने वालों के लिए भी है। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, this is the very voice of God in print. ये खुदा की आवाज प्रिंट की सूरत में मौजूद है। You can't convince me that you're in love with Jesus Christ आप मुझे नहीं कन्विंस कर सकते कि आप यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करते हैं। I said, you can never convince me that you're really in love with Jesus Christ और आप जो है मुझे माइल नहीं कर सकते कि आप यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं if you don't want to hear His voice. अगर आप उसकी आवाज सुनना पसंद नहीं करते। Hear ye Him. क्योंकि लिखा है उसकी सुनो, Hear the message of the hour. वक्त के पैगाम की सुनो। God has spoken to His bride in this hour. और खुदा ने अपनी दुल्हन से इस वक्त कलाम किया है And He's come to claim His own. और वो आया है कि अपनों को ले ले। And we are right now living in that coming of the Lord. और हम जो है खुदावंत की सामत में जी रहे हैं The coming of the Lord is a process. और खुदावंत की आमद जो है ये एक प्रोसेस है And that process has already begun. और ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। First Thessalonians. आए अब कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। पहला थस्सलुनीकियों, This is one of the main scriptures that Brother Branham used when he preached the rapture message.
और भाई ब्रैनन ने जब रैप्चर पैगाम दिया तो इस आयत का इस्तेमाल किया। Let us read the scripture. पहला तस्लीकियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। Beginning with verse 15. उसकी 15वीं आयत से तलावत करते हैं। For this I say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. चुनांचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। For the Lord himself, क्योंकि खुदावन खुद for the Lord himself क्योंकि खुदावन खुद shall descend from heaven आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के नसीमा के साथ उतर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Notice, अब जरा ध्यान the दें, Bible says he descends from heaven. बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो आसमान से उतरेगा। This is the beginning of a rapture. और ये जो है यही रैप्चर का आगाज है। But we also, in the climax of the rapture, और जो क्लाइमैक्स होगा फिर रैप्चर का, we meet him in the air. हम इस हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। So first he descends from heaven, पहले जो है वो आसमान से उतरता है and he's here this morning. और आज सुबह को यहाँ पर मौजूद है। He's here in the form of his living word. वो अपने जिंदा कलाम की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। He's here in the form of the baptism of the Holy Ghost. वो पाप के बपतिस्मा की सूरत में यहाँ पर मौजूद है The fullness of the baptism of the Holy Ghost. और पाप की पूरी मामूली के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। Each one of those ages, church ages, only taken a dip in the Holy Ghost. और बाकी तमाम जमानों ने सिर्फ एक घोटा लिया पाखरू में, But now the Holy Ghost is here in his fullness. लेकिन अब पाखरू अपनी पूरी हजूरी में यहाँ पर मौजूद है He has descended from heaven और वो आसमान से उतर चुका है with a shout. और वो एक ललकार के साथ उतरा है He is in the shout. और वो ललकार में है And the shout is the message of the और वो hour. ललकार उसका पैगाम है। और खुदावन खुद आसमान से ललकार With the voice of the archangel और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज and with the trump of God. और खुदा के नसीने के साथ उतर आएगा। And the dead in Christ shall rise first. और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें। So shall we ever be with the Lord. और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। Wherefore comfort one another with these words. बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। Now we've had these words for 2,000 years. अब हमारे पास ये जो बातें हैं ये 2000 साल से रही हैं And these words are generally read at funeral services. और ये जो बातें हैं ना ये ज्यादातर जनाजा की जो बातें होती हैं उन पे पढ़ी जाती To हैं bring comfort to those that are bereaved. ताकि उनको तसल्ली दी जाए जो परेशान होते हैं। But if you'll notice, लेकिन अगर आप ध्यान दें Paul said, comfort one another with these words. और पौलुस ने फरमाया कि इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। We must understand the meaning of these words. हमें जरूर है कि इन बातों का मतलब समझें The divine revelation of these words, और इस कलाम का जो है इलाही मुकाशफा समझें। if there's going to be any true comfort. अगर वाकई तसल्ली चाहिए तो फिर इसका मुकाशफा समझना पड़ेगा। Okay, I want to read one more verse of portion of scripture before that we're seated, इससे पहले कि हम बैठे एक और आयत का तलावत करते हैं because everything we say must be based on the scriptures. क्योंकि जो भी हम कहें वो जरूरी है कलाम मुकद्दस के मुताबिक हो। Matthew chapter 25, मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, and those of you who are interested in this letter from your bridegroom, और आप लोग जो वाकई दिलचस्पी रखते हैं अपने दुल्हा के पैगाम में, I want you to read the whole chapter later. मैं चाहता हूं कि इस इबादत के बाद आप पूरा बाब लाजमी पढ़िएगा। But today, in order to condense, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे
We'll just read 1 or 2 verses. हम जो है 1 या 2 आयत की तलावत करेंगे। Verse 10. 10वीं आयत। And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage. जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई। I want to remind you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, for those who have heard the message, proving His word, जिन्होंने ये पैगाम सुना है अपने कलाम को साबित करना, and if you've never heard that message, you need to go listen to it. और अगर आपने नहीं सुना तो फिर आपकी जरूरत है कि उसको सुने। Brother Branham taught us that the marriage takes place here in this dimension. और भाई ब्रैनम हमें बताते हैं कि जो शादी है, जो मिलाप है, वो इस जमीन पर है, And we go to the marriage supper, not the rapture. और हम जो है रैप्चर के अंदर शादी की ज़ियाफत में जाते हैं। So we come now in this dimension to an invisible marriage. और इस जमीन पर, इस जगह पर हम जो है एक नादीदा मिलाप में जुड़ रहे हैं, An invisible union. जो एक नादीदा शादी का मिलाप है। And the door was shut. और दरवाजा बंद हो गया। Let's read verse 13. आए 13वीं आयत की तलावत करते हैं। Watch therefore, बस जागते रहो, for you know neither the day nor the hour क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो wherein the Son of Man cometh. और बस जागते रहो क्योंकि तो तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। This is the coming of Jesus Christ, the Son of Man. और ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद है जो इब्ने आदम है। Hallelujah. हालेलुया। So may the Lord add His blessings to the reading of His Word. और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत फरमाए। Only if you will smile. और अगर आप एक दूसरे को देख के स्माइल करें, Then I'll let you shake your brother or your sister's hand. और मैं चाहता हूं कि आप अपने भाइयों का, बहनों का हाथ मिलाएं, बहनों से हाथ मिलाएं। And then I'll let you see. भाई कह रहे हैं तभी बैठने दूंगा जब एक दूसरे से सब हाथ मिलाएंगे। Hallelujah. जी, और एक दूसरे को मुस्कुरा के कहें खुदा को बरकत दे। और अब आप तशरीफ रख सकते हैं। So we're speaking this morning और आज सुबह जो है हम इस सबक पर सीख रहे हैं about the unrecognized presence of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी जो पहचानी ना गई। And I see all of these ministers have their coat off. और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम खादम बैठे हुए हैं, So I'm going to ask permission to take my coat off. और तमाम खादमों ने कोट उतारा है, तो मैं भी परमिशन चाहूंगा कि मैं कोट उतार दूं। Is that okay? ठीक है। And I'm certainly thankful for the church that has bought me this new suit of clothes. और मैं यकीनन कलीसिया के लिए शुक्रगुजार हूँ, पास्टर साहब के लिए जिन्होंने मुझे ये नया सूट गिफ्ट किया है। It fits real good. और ये बहुत अच्छा है और बिल्कुल फिट है। Shukriya. शुक्रिया। Now, अब I don't want your attention to be on me. मैं नहीं चाहता कि आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ करें, Yet I do want your undivided attention. लेकिन फिर भी मैं आपकी तवज्जो पूरी चाहता हूँ। And I want your attention to be on the words that I speak. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो इन बातों पर हो जो मैं करूँगा। We're speaking of the bride coming of Christ. क्योंकि हम जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन के बारे में बात कर रहे For हैं। all that was in God, He poured into Christ. क्योंकि जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में उंडेल दिया। And that first coming of Christ was a process of time. और वो जो पहली आमद थी मसीह की, वो वक्त का प्रोसेस था। Amen. आमीन। And all that was in Christ, He pours. See, all that was in God, He poured into Christ. देखिए, जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में उंडेल दिया। And all that was in Christ, He pours into His bride. और जो कुछ मसीह के था उसने अपनी दुल्हन में उंडेल दिया। And He does that by revealing Himself to her. और वो ये इस तरीका से करता है जब वो खुद को आश्कारा कर देता है। This is not the coming of the Lord where every
eye sees him and every knee bows. और ये वो यीशु मसीह की आमद नहीं जिसमें हर घुटना जो है उसके आगे झुकेगा और तमाम आंखें उसे देखेंगी। This is a mysterious coming. ये जो है ये एक पोशीदा आमद है। This is the secret coming of the Lord. और ये एक खुफिया आमद है। This is like when Romeo come and stole away Juliet in the night. और ये आमद ऐसी है कि जब मोहब्बत करने वाला आता है और अपनी दुल्हन को ले जाता है। She knew he was coming. सिर्फ वो जानती है कि वो आ रहा है And she was ready. और वो तैयार थी। Hallelujah. हालेलुया। And she was stolen away at midnight. और आधी रात के वक्त में दूल्हा अपनी दुल्हन को ले गया। Juliet had received a message from Romeo. और जूलियट ने जो है रोमियो से एक पैगाम रिसीव किया था। Honey, I love you. प्यारी मैं तुझसे मोहब्बत करता And हूँ I know they don't want you to leave home, और मैं नहीं और मुझे पता है कि ये नहीं मानेंगे, but I'm coming after you. लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए आऊंगा। Get ready. तू तैयार रहना Don't tell nobody. और किसी को बताना नहीं। It's a secret. ये एक भेद है। Hallelujah. हालेलुया। That is the coming of the Lord today. और इसी तरह खुदावंद की आमद आज है। Be ye therefore ready. इसलिए जागते रहो, तैयार रहो। Hallelujah. हालेलुया। Now the elect knows about the coming of the Lord, अब जो चुने हुए हैं वो खुदावंद की आमद के बारे में जानते हैं, but to the rest of the world it's not given. लेकिन जितनी बाकी दुनिया है उनको ये बात नहीं दी गई। We read from the message questions and answers on Hebrews part 3. और हम जो है सवालात और जवाब, इब्रानियों पर सवालात और जवाबात उसका तीसरा हिस्सा इसमें से पढ़ेंगे। Record 7:18. और इसका 718 नंबर पैरा है। This was preached all the way back in 1957, और ये जो है 1957 में इसकी मनादी की गई, before the seals was opened. इससे पहले के मोहरें खोली जाती। But I assure you that this revelation does not change by the opening of the seals. लेकिन मैं आपको ये बात की यकीन कहानी करा सकता हूँ कि मोहरों के बाद भी इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। And Christ becomes, और मसीह आता है, God dwells in that perfect, marred body completely, forever and through eternity. अब जो खुदा है वो उस बदन के अंदर जिस पर घाव लगाए गए हमेशा हमेशा अबदियत के लिए उसमें बसा रहेगा। Now he's talking about that physical, virgin-born body of the Lord Jesus Christ. और अब यहाँ पर नबी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कबारी से पैदा हुए बदन के बारे में बात कर रहे हैं। When the Lamb and the bride is married in heaven, she walks out in full possession. और जब बर्रा की और उसकी बीवी की शादी आसमान में हो जाती है तो उसके बाद वो अपनी पूरी मलकियत के साथ सामने आता है। Absolutely. बिल्कुल जी हाँ। Isaac and Rebekah come forth in full possession. क्योंकि इसहाक और रिबका अपनी पूरी मलकियत के साथ सामने आए थे। Now don't forget, और अब भूले ना, we have been taught by the messenger और हमें पैगंबर के वसीला ये बताया गया है that this marriage takes place here in this dimension. कि ये जो शादी है, ये जो मिलाप है वो इस जमीन पर है। हालेलुया। And we're only going to the marriage supper in the sky. और हम जो है आसमान पर शादी की ज़ियाफत में जा रहे हैं। Don't forget that. और अब जो है इसे भूलना नहीं है। Now in the message, the sign of the time, 58, और वक्त के निशान में पैगाम में a analysis of who believed in the literal coming of the Lord Jesus. और ये जो है ये एक तज़किया है कि कौन यकीन करता है यीशु मसीह की बदनी आमद में। 78% of the American preachers denied the literal return of the Lord Jesus. और 78 अमेरिकन जो मनात थे उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि यीशु मसीह ऐसी बदनी हालत में वापस नहीं आएगा। Babylon. और ये जो है ये बाबल का And it was तर्ज है। and it was more than that, but denied the virgin birth. और इससे भी बढ़कर उन्होंने कुंवारी से जन्म का भी इनकार कर दिया। How do you expect to build a church of the living God upon some ruin and chars of Sodom?
और भाई ब्रैनम कहते हैं कि आप खुदा की जिंदा कलीसिया की तामीर ऐसे लोगों पर सदूम जैसी खाक पर कैसे कर सकते हैं। So I want to remind you and assure you, और मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ और इसकी यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, there is a literal body of the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का एक ऐसा बदन मौजूद है and He must remain at the right hand of the Majesty on high, making intercession और वो जो है वो किबरिया के दाहिने हाथ पर है और हमारी शिफायत कर रहा है। until you and I come to our rightful position, वो कब तक शिफायत कर रहा है, जब तक हम अपनी ठीक जगह पर नहीं आ जाते and until that last predestined seed comes into the body of Christ. और जब तक वो आखिरी चुना हुआ बीज जो है वो खुदावंद के बदन में नहीं आ जाता। 1962, अब ये 1962 का पैगाम है the message entitled "We Would See Jesus." और इस पैगाम का अनुमान है हम यीशु को देखेंगे। I believe in His literal coming, भाई ब्रैनम फरमाते हैं मैं उसके बदनी आमद का यकीन करता हूँ corporal body, और ऐसा बदन होगा descending from heaven with a shout, और वो बदन जो है आसमान से एक ललकार के साथ आएगा and with the voice of the archangel, और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज के साथ आएगा and the trump of God. और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा And the dead in Christ shall rise, और जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे but His Spirit is with us, is here with us. लेकिन उसका रूह इस घड़ी आज हमारे साथ मौजूद है But His Spirit is here with us. और उसका रूह आज हमारे साथ मौजूद है। So there's a difference between the angelic coming of the Lord. और अब जो यीशु मसीह की फरिश्ते की मानी दामद है उसमें फर्क है There's a difference between the Word coming of the Lord और यीशु मसीह के कलामी आमद में फर्क है and the literal physical corporal body that we meet in the air. और जो बदनी हालत में आमद है उसमें फर्क है। In 1 Samuel chapter 1 and verse 23, और पहले सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 23वीं आयत में the Bible declares, और बाइबल मुकद्दस फरमाती है the Lord, capital L-O-R-D, और खुदावन the Lord appeared again in Shiloh और खुदावन जो है दोबारा जाहिर हुआ and revealed Himself unto Samuel by the word of the Lord. और खुदावन ने अपने कलाम के वसीला से सैमुएल पर अपना आप जाहिर किया। And we read in the New Testament और हम नए नामा में पढ़ते हैं about the appearing of the Lord and then the coming of the Lord. और हम नए नामा में खुदा के जाहिर होने पे और फिर उसकी आमद के बारे में पढ़ते हैं And there's about 5 or 6 different places Brother Branham gives the divine interpretation. और 5 से 6 जगहें हैं जहाँ पर भाई ब्रैनम इसकी इलाही तर्जुमानी करते हैं And he said it's 2 different words altogether, और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये 2 मुख्तलिफ लफ्ज हैं 2 different events, और ये 2 मुख्तलिफ वाक़यात हैं but yet it's part of the process. लेकिन ये एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। But he said we're living now in the appearing of the Lord. और वो कहते हैं कि अब जो है हम खुदावन के जाहिर होने में जी रहे हैं No man can do these things. और कोई दूसरा इंसान ये काम नहीं कर सकता। It shows that the presence of the supernatural God, और ये बात ये जाहिर करती है कि खुदा की इलाही हजूरी यहाँ मौजूद है greater than it has been through the ages. और जितने पुराने जमाने थे सबसे ज्यादा हजूरी इस जमाने में है। This process of 1 Thessalonians that we read और ये जो प्रोसेस है, ये जो काम पहले तस्लीकियों में शुरू हुआ has already begun. और ये जो है ये अब आगाज पकड़ चुका है। Hold that in mind in our little Sunday school lesson this morning. और अपनी संडे स्कूल के पैगाम में जरा ये बात अपने जहन में रखनी है This is just a little simple Sunday school lesson. और ये जो है बिल्कुल एक आम संडे स्कूल लेसन की तरह है। But again, you should never come to the classroom without your textbook. लेकिन कभी भी अपने क्लासरूम में बगैर अपनी किताब के नहीं आना है। Hallelujah. Get your face out of Facebook. और अपना जो फेस है वो फेसबुक से हटाएं Get it back in your own और book. वापस खुदा की किताब में ले आए। Don't just read the letter. और फिर जो है इस खत को पढ़े ना Study the letter. बल्कि इसका मुताला करें। The Bible declares और बाइबल मुकद्दस फरमाती है that we are
constrained and commanded, और हमें ये तारीफ की गई है, especially as ministers of the gospel. और खुदा के खादम होते हुए, Paul told Timothy, और पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, study, भागोर मुतालिया कर, study, गौर कर, to show thyself a workman, rightly dividing the word of God. ताकि कि तू ऐसा हो जाए कि कलाम को बिल्कुल उसके मुताबिक बयान कर सके, हिस्सा का हिस्सा बयान कर सके। And so we must have his living word in us. और बस उसके जिंदा कलाम को हमारे अंदर होना चाहिए। Now, in the message, three kinds of believers. और अब अपने पैगाम 3 किस्म के ईमानदार, Preached after the seals, और ये जो है ये मोहरों के बाद इस पैगाम को भाई ब्रैनन ने दिया, 63-1124 evening message. और ये 1963 11वां महीना उसकी 24वीं तारीख को दिया गया। There is a heaven, एक आसमान है, and there is a literal Jesus Christ there that will come in a body form to receive his church to himself. और एक यीशु मसीह वहां पर इस बदनी हालत में मौजूद है, जो अपनी कलीसिया को खुद लेने आएगा इस बदन में होकर। No matter how the story seems, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहानी कितनी पुरानी लगती है, it's still the truth. ये आज भी सच्चाई है। God said so. खुदा फरमाता है, That's what believers believe. और यही ईमानदारों का ईमान है। Hallelujah. हालेलुया। That's what believers believe. और यही ईमानदार यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं। Now, in every congregation, you have three kinds of believers. और अब हर जो जमायत होती है उसमें आपके पास 3 किस्म के ईमानदार होते हैं, And they're represented right here this morning. और आज सुबह भी यहाँ पर ऐसे ही मौजूद हैं। But that's what believers believe. लेकिन हम ईमानदारों की बात कर रहे हैं। Hallelujah. Now, I want to draw your attention to the Gospel of St. John, chapter 11. और अब मैं चाहता हूँ कि आप यूहन्ना की अंजील की तरफ चले, And this is the rapture. This is the resurrection of Lazarus. और ये जो वाक़या है ये लाजर का जो है जी उठना है। And I would just like to read verses 25 and 26. और मैं जो है इसकी 25वीं आयत से तिलावत करना चाहूंगा। यूहन्ना की अंजील 11वां बाब उसका 25वीं आयत। Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. और यीशु मसीह ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. वो जो मुझ पर ईमान रखता है चाहे वो मर भी जाए फिर भी जिंदा रहेगा। Verse 26. और अब जो है उसकी 26वीं आयत की तिलावत करते हैं। And whosoever liveth and believeth in me shall never die. और जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा वो कभी ना मरेगा। Believest thou this? क्या तू इस पर ईमान रखती है? Hallelujah. हालेलुया। Now, when Brother Branham preached the rapture message, और जब भाई ब्रैनन ने रैप्चर पैगाम दिया, one of the last messages that he preached before the Lord taking him from off the scene, और ये जो है उन चंद पैगामात आखिरी पैगामात में से था जब यीशु मसीह उनको इस जमीन से ले गया। and remember, God takes his man, but not his spirit. लेकिन आप याद रखें कि खुदा अपने बंदे को तो ले जाता है मगर उसकी रूह को लेकर नहीं जाता। And remember this also, और ये भी बात याद रखें, in 1933, 1933 में beginning part of the prophet's ministry, और जब नबी की खिदमत का आगाज हुआ, the great pillar of fire appeared over the Ohio River और जो है वो ओहायो दरिया के ऊपर जो है आग का सतून जाहिर हुआ and said, as John the Baptist was sent to forerun my first coming, your message will forerun the second coming. और जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था कि मेरी पहली आमद का पेशरू हो, तू मेरी दूसरी आमद का पेशरू होगा। अब याद रखिए, As John the Baptist,
भेजा गया। In other words, it's going to be a repeat. और दूसरे लफ्जों में ये एक रिपीट होगा, दोहराया जाएगा। I am royalty, saith the Lord. I am royalty. और मैं जो हूँ खुदा की तरफ से शहजादा हूँ। And royalty must be introduced. और जो शहजादा आता है उसका पहले तारुफ करवाया जाता है। Jesus Christ is the royal seed. और यीशु मसीह जो है वो शाही नस्ल है खुदा की। And we are part of that royal seed also. और हम भी उसकी शाही नस्ल का हिस्सा हैं। So, John the Baptist introduced royalty. बस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो है उस शाही नस्ल का तारुफ करवाया। And then immediately he was beheaded और जैसे ही उसने तारुफ करवाया तो उसके सर को कलम कर दिया गया। and taken off of the scene. और फिर जो है उसे मंजर से हटा दिया गया। This first forerunner, John the Baptist, और ये जो पहला पेशरू था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, the forerunner of the first coming of the Lord, और ये जो खुदावन की पहली आमद का पेशरू था, would not be taken off of the scene until Jesus Christ was on the scene. और ये तब तक मंजर से हटाया नहीं जा सकता था जब तक यीशु मसीह मंजर पर आ जाता। And Brother Branham, और भाई ब्रैनम in like manner, और उसी तरीके से could not be taken off of the scene और वो मंजर से नहीं हटाए जा सकते थे until Jesus Christ was first on the scene. जब तक यीशु मसीह पहले मंजर पर आ नहीं जाता। So he's here. बस यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, In what form? अपने कलाम की सूरत में मौजूद है। He's here in spirit form. वो यहाँ अपने रूह की सूरत में मौजूद है। But yet we wait for the coming of the literal corporal body in the air. लेकिन हम फिर भी जो है उसकी बदली आमद का इंतजार कर रहे हैं। Amen. आमीन। So it's a process. बस ये एक प्रोसेस है। Now I want you to notice, और अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, Jesus said यीशु मसीह ने फरमाया, to Martha, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, I am the resurrection यीशु मसीह ने कहा मैं कयामत हूं and the life. और जिंदगी भी हूं। Okay. So we know that the resurrection is an event और हम जानते हैं कि जो कयामत है ये एक वाकया है where all of the dead in Christ through 7 church ages will come forth. जिसके अंदर जो है 7 कलीसियाई ज़मानों में जितने भी मर गए हैं वो सब सामने लाई जाएंगे। We believe that. और हम ये मान रखते हैं। But if you'll notice, लेकिन अगर आप ध्यान दें, the resurrection is more than just an event. और जो जी उठना है वो एक वाक्य से बढ़कर है। It is a person. और ये जो है ये कोई सिर्फ वाक्य नहीं, ये एक हस्ती है It is the person. और ये एक खास हस्ती है। Okay, जी हाँ, we all agree with what Jesus said. और हम सब इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो यीशु मसीह ने कहा। I am the resurrection. यीशु मसीह ने कहा मैं कयामत हूँ। And if the resurrection is a person, और बस अगर कयामत जो है वो एक हस्ती है, then the rapture is also a person. तो फिर जो रैप्चर है वो भी एक हस्ती है। Hallelujah. हालेलुया। Thus saith the Lord, खुदावंद यूं फरमाता है, I am the rapture. मैं ही रैप्चर हूँ And the life. और जिंदगी भी हूँ। Now, let's see if that is according to the message. और अब देखते हैं कि क्या ये बात पैगाम के बिल्कुल हूबहू मुताबिक है, Because we don't want to say anything on our own. क्योंकि हम ऐसी बात नहीं करना चाहते जो सिर्फ हमारी तरफ से हो। Brother Branham was a son of man. भाई ब्रैनम जो थे वो इब्ने आदम थे, इब्ने आदम की आदत में थे। He has already come and gone. और भाई ब्रैनम तो आए और चले भी गए। He's waiting now for you. और आपको आपका इंतजार कर रहे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं Come to our position. ताकि हम अपनी पोजीशन पे आ जाएं। He's beyond the curtain of time. और वो पर्दे वक्त के बाहर है। And when he was called beyond the curtain of time, और जब उन्हें वक्त के पर्दा के पार बुलाया गया he wanted to see Jesus. तो वो चाहते थे कि यीशु मसीह को The देखें। voice said, he's not here, he's higher. लेकिन जो एक आवाज उनसे मुखातिब हुई और कहा यीशु मसीह
नहीं को उससे भी बुलंद But मुकाम at से the है। coming of the Lord, लेकिन खुदावंत की आमद पर you will be judged first. पहले तेरे को जो है जज किया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. And he said, और उसने आवाज में the फरमाया voice said, और आवाज ने कहा you'll be judged for what you preached. और तेरी अदालत इस पे की जाएगी जो तूने मनादी की। He said, you mean I'll have to be judged? और भाई ब्रैनम ने कहा मेरी अदालत की जाएगी, मुझसे हिसाब लिया जाएगा। Well, Peter and Paul also have to be judged. तो क्या पतरस और पौलुस से भी हिसाब लिया जाएगा? Yes. जी हाँ। He said, well, praise God, I preached just what Peter and Paul were. मैंने कहा आमीन, मुझे मैंने वही मनादी की है जो पौलुस और पतरस ने की है। And thousands said, और हजारों ने कहा that was his converts beyond the earth of time. और ये जो भाई ब्रैनम के वसीले बचे थे ये पता वक्त के पार मौजूद लोग थे। All those converts said, we're resting on that. और तमाम ने मिलके कहा हम अपनी उम्मीद इसी पे लगाए बैठे हैं। We are resting on the fact that God has sent us a vindicated prophet. और हम इस बात पर अपना आराम टिकाए बैठे हैं कि खुदा ने हमें एक तस्दीकशुदा नबी भेजा। And the voice said, और आवाज ने कहा if you are accepted, और अगर तू कबूल कर लिया गया which you will be. जो कि तू कर लिया जाएगा। The voice said, और आवाज ने कहा when you're judged, और जब तेरा हिसाब होगा if you are accepted, और जब तू कबूल कर लिया जाएगा, if your ministry is accepted, अगर तेरी खिदमत कबूल कर ली जाएगी if the message that you preached is accepted, और जो पैगाम की मनादी को करता है वो कबूल कर लिया जाएगा which it will be. और जो कि कबूल कर लिया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. This message has already been accepted beyond the earth of time. Then we'll go back to earth and take up bodies. और फिर जो है हम दोबारा जमीन पर आएंगे और बदनों को पहनेंगे। Uh-huh. आमीन। What is that? अब ये क्या है? Resurrection. ये जो है जी उठना है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Then we'll take on, put on glorified bodies. और फिर जो है हम जलाली बदनों को भी लेंगे। हालेलुया। Oh, wow. You see, there's three bodies. आप देखेंगे तीन बदन हैं। This body that was born in flesh, पहला बदन जो ये है जो जिस्म में पैदा हुआ, the celestial body that we go to if this earthly tabernacle be dissolved, और जब ये खेमा गिराया जाएगा तो फिर एक मजबूती जिस्म है जिसमें हम जाएंगे। and that's where Brother Branham is now. बस इसी बदन के अंदर अब भाई ब्रैनम मौजूद है। And then, at the resurrection, और फिर जी उठने पर they'll take on, there's elements of this body that's resurrected. और फिर ये बदन जो जी उठेगा, Oh, yes. जी हाँ, These 16 elements right here. ये जो 16 अनासिर है ये जी उठेंगे। Hey, hey. Glory to God. My. I said these 16 elements that we live in now और मैंने कहा कि ये जो 16 अनासिर हैं जिनमें अब हम जी रहे हैं, will be resurrected. ये जो है क़यामत में जी उठेंगे। And it will no longer just be a celestial body. और फिर ये जो है सिर्फ एक मलकूती जिस्म नहीं रहेगा It will no longer just be a theophany body, और ना ये फिर थियोफनी रहेगी, but it will be a glorified body. बल्कि ये जलाली बदन बन जाएगा। और ये वो बदन बन जाएगा जो मसीह की मानद होगा। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, if this book goes down, अब भाई ब्रैनम ने कहा कि अगर ये किताब नीचे जाए then and if I pick up another book, और मैं एक और किताब ले लूं, that's not resurrection. तो ये जो है ये जी उठना थोड़ी होगा कि एक पहन लूं और दूसरी ले लूं। समझ आ रही आपको? Listen closer. आप बड़े ध्यान से सुने। He said the same thing that goes down भाई ब्रैनम ने कहा वही चीज जो नीचे जाती है उसको वापस ऊपर आना है। and he said, और भाई ब्रैनम ने फरमाया even if you've been burned at the stake, अगर चाहे आप जला भी दिए जाएं or if you've been fed to the lions, या आपको शेरों को खिला दिया जाए if your ashes have been scattered over the sea, और अगर आपकी खाक राख को जो है समुद्र में फेंक दिया जाए, something of those 16 elements must be resurrected. लेकिन 16 अनासिरों को फिर जी उठेंगे।
थे and the greatest manifestation of all the prophets. और तमाम जितने भी नबी गुजरे उन सब में मेजर नबी गुजरे Brother Branham's ministry, and he was more thoroughly vindicated than any of the prophets. और जितने नबी गुजरे उन सबसे ज्यादा जो तस्दीक शुदा खिदमत थी वो इस नबी की थी Scripturally vindicated. और कलाम से जो है तस्दीक की गई Vindicated with signs and wonders and miracles. और मुजज़ात के वसीले तस्दीक की गई निशानात के वसीले तस्दीक की गई But yet, Brother Branham was a son of man. लेकिन फिर भी भाई ब्रैनम जो थे वो सिर्फ इब्ने आदम की आमद में थे Introducing the coming of the Son of जो Man. असल इब्ने आदम को जो है जाहिर कर रहे थे तारीफ करवा रहे थे Notice in the scripture that we read in chapter 25, और अब मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब के अंदर जो हमने आयत की तिलावत की उस पे गौर करें it said, the day or the hour wherein the Son of Man cometh. और इस आयत के अंदर लिखा हुआ है ना हम उस दिन को जानते हैं ना उस वक्त को जब जो है इब्ने आदम आ जाएगा In other words, we're speaking of the coming of the Son of Man. और अब यहाँ पर जो बात की गई है वो हम उस इब्ने आदम की आमद के बारे में बात कर रहे हैं That coming is also identified in Revelation chapter 10 and verse 1. और इस जो आमद का जिक्र है वो मुकाशवा 10 बाब उसकी पहली आयत में भी है Christ, मसीह the mighty angel, जो अजीम फरिश्ता है with the rainbow over his head. जिसके सर पर धनक है Amen. आमीन No man was found worthy to loose those seals, और कोई शख्स इस लायक नहीं ठहरा था कि उन मोरों को खोले but Christ, लेकिन मसीह ने he opened those seals. मसीह ने उन मोरों को खोला He took the book. और उसने जो है उस किताब को ले लिया He loosed the seals there. और वहां पर उन मोरों को खोल दिया What has it been? और अब ये क्या था It's been the ministry of the Son of Man, Jesus Christ. और ये यीशु मसीह इब्ने आदम की खिदमत थी More than just a man. और अब जो ये आमद थी मसीह की ये जो है एक इंसान से बढ़ के थी The Son of Man himself. बल्कि ये खुद इब्ने आदम था अपनी पूरी कुव्वत में It was not just Brother Branham revealing Jesus Christ. और ये जो है सिर्फ भाई ब्रैनम नहीं था जो यीशु मसीह को जाहिर कर रहा It था was Jesus Christ himself using Brother Branham to reveal himself. बल्कि यीशु मसीह का भाई ब्रैनम को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रकट कर रहा था That's what he wants to do with you. और यही चीज खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ करने वाला है हालेलुया In the message, show us the Father, and it suffices us. और इस पैगाम में खुदावंद हमें बाप को दिखा और हम मुतमईन हो जाएंगे The Holy Ghost baptism. और अब जो पाक रूह का बपतिस्मा है Yes, sir. जी हाँ जनाब And everything you have need of for this life's journey, even the rapture, is right in you then. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये जो पाक रूह का बपतिस्मा है जी हाँ जनाब ये सब कुछ है जिसकी आपको इस जिंदगी के सफर में जरूरत है यहाँ तक कि रैप्चर भी आपके अंदर मौजूद है Now, when Brother Branham preached the Holy Ghost series, अब जब भाई ब्रैनम ने रूह कुदस के पैगामात पर अपने पैगाम दिए he said, if I could convince you और भाई ब्रैनम ने कहा अगर मैं आपको इस बात पे माइल कर सकूं of your need for the baptism of the Holy Ghost, और इस बात पे माइल कर सकूं कि आपको जरूरत है पाक रूह के बपतिस्मा की it would be the most wonderful revelation you could ever receive. तो ये सबसे खास मुकाशफा है जो कभी आप पा सकेंगे Why? क्यों Because when you receive the Holy Ghost, क्योंकि जब आप पाक रूह को पा लेते हैं when you receive the new birth, जब आप यहाँ जन्म पा लेते हैं you receive Jesus और Christ. जब यीशु मसीह को पा लेते हैं And when you receive Jesus Christ, और जब आप यीशु मसीह को पा लेते हैं everything that you have need of for this earth journey from here to heaven is in you then. और जब आप यीशु मसीह को पा लेते हैं तो अपनी जमीन से आसमान तक के लिए जो जो चीज की आपको जरूरत है वो ऑटोमेटिक आपके आ जाती है
यहाँ पर कहा कि रैप्चर भी आप में आ जाता है। Oh, my. जी हाँ। And he said, don't resent that. और अब भाई ब्रैनम कहते हैं कि इस बात को रद्द नहीं करना, That's the truth. ये सच्चाई है। The rapture is in us now. रैप्चर इस घड़ी हमारे अंदर मौजूद है। My. ओ खुदाया तेरा शुक्र हो। If that was true in 1953 when Brother Branham said it, और अगर ये सच है 1953 के अंदर जब भाई ब्रैनम ने ये बात कही, how much more true is it today? तो फिर ये आज किस कदर सच है। The seals have been opened. जब के मोहरें खुल चुकी हैं And we've seen the evidence of the presence of the Lord. और हमने अपने दरमियान खुदा की हजूरी के सबूतों को देखा है। We must recognize the presence of the Lord. हमारी जरूरत है कि हम खुदा की हजूरी को पहचान लें। I said we must recognize the presence of the Lord. और मैंने कहा कि हमारी जरूरत है हम खुदा की हजूरी को पहचान लें। Because Saul of Tarsus did not recognize the presence of the Lord. और तस्लीस के साउल ने जो है ना यीशु मसीह की हजूरी को नहीं पहचाना था And he blasphemed. और उसने उसके खिलाफ कुफर बका। Even after the Holy Ghost was given, इसके बाद के रूह कुदस दिया जा चुका था, he was still persecuting Jesus Christ वो फिर भी यीशु मसीह को सता रहा था until he met him on the road to Damascus. जब तक कि उसकी मुलाकात दमिश्क की राह पर यीशु मसीह से नहीं हो गई। And he said, "Who art thou, Lord?" और फिर उसने कह दिया है खुदावंद तू कौन है। That same Jesus that walked the shores of Galilee. और वही यकसा यीशु जो गलील के रास्तों पर चला था, That same Jesus that was crucified. और वही यीशु जिसे मसलूब किया गया था, That same Jesus that resurrected and ascended. और वही यीशु जो जी उठा और उठा लिया गया, हालेलुया, Returned back in the form of a pillar of fire. वापस जो है आपके सतून की तरह वापस आया। I am Jesus whom thou persecutest. और उस आपके सतून की सूरत में उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। Now, अब I want to read from the rapture message और अब जो है मैं रैप्चर पे काम में से पढ़ना चाहता हूँ। preached just a few days before Brother Branham was taken off the scene. और भाई ब्रैनम के इस जमीन से उठाए जाने से कुछ दिन पहले The last month of Brother Branham's life. और भाई ब्रैनम की जिंदगी के आखिरी महीने में 65/12/04 1965 उस 12वां महीना चौथी तारीख preached December the 4th, 1965. Say it again. 1965 उसका 12वां महीना उसकी चौथी तारीख को ये पैगाम रैप्चर पेश किया गया। For the Lord himself, 16th verse he's referring to. And he's referring to the scriptures. और भाई ब्रैनम यहाँ पर तस्लीकियों के हवाले का जिक्र कर रहे हैं। उसकी 16वीं आयत के We're receiving the divine interpretation of what we read in our text. और अब जो हमने अपनी तलावत की है उसकी इलाही तर्जुमानी हमें इस कोड में मिलती है। So listen closely. इस वजह से आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। For the Lord himself, क्योंकि खुदावंद खुद 16th verse, 16वीं आयत में shall descend from heaven आसमान से उतर आएगा with a shout. एक ललकार के साथ And with the voice of the archangel and the trump of God. और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज के साथ और खुदा के नसीहा के साथ उतर आएगा। Three things happens. 3 चीजें जो हैं वो वकू में आती हैं। A voice, एक आवाज, a shout, a voice, a trumpet. एक आवाज, एक ललकार और एक नरसिंगा Has to happen before the Lord appears. इससे पहले कि यीशु मसीह जाहिर हो, ये तीनों होनी है। Now a shout. और अब जो एक ललकार है, Jesus does all three of them when he's descending. और यीशु मसीह जब उतरते हैं तो वो इन तीनों को पेश करते हैं। So we're talking about a process. बस हम जो यहाँ पर हैं एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। Only the elect
elect can understand that we are in a process. और सिर्फ चुने हुए जो हैं वो इस बात का यकीन कर सकते हैं कि हम एक प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. A shout. एक पुकार, एक ललकार। What is the shout? और ललकार क्या है? It's the message going forth first. ये जो है ये पैगाम का पहले आगे जाना है। The living bread of life bringing forth the bride. और जो जिंदगी की रोटी है वो दुल्हन को सामने लाती है। Amen. आमीन। Now, these three things और अब ये तीन चीजें, and I'd like to say that to my understanding, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये ठीक समझ के मुताबिक we have already heard the shout. हमने जो है ललकार पहले ही सुनी है, The message is here. क्योंकि पैगाम यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। But yet there is a resurrection to take place. लेकिन अभी एक जी उठना बाकी है। Amen. आमीन। When the Holy Spirit told Brother Branham, take up a pen and write, जब पात्रों ने भाई ब्रैनम को कहा कि अपनी कलम को उठाओ और लिख, he said, here is the secret of this. तो भाई पात्रों ने कहा इसका भेद ये है, The word is in the bride as it was in Mary. जिस तरीके से कलाम मरियम में था आज दुल्हन के अंदर मौजूद है। What was in Mary? और दुल्हन के अंदर क्या, मरियम के अंदर क्या था? What was in that virgin womb? और जो है उस कुमारी के रहम में क्या था? What was in that chosen bride? और उस चुनी हुई दुल्हन के जो है रहम में क्या था? Almighty God. वो पूरे आत्मा की खुदावंदी था। Fullness of the Godhead bodily और हालेलुया की पूरी मामूली being formed in that virgin womb. वो जो है उस कुमारी के अंदर जन्म पा चुकी थी। Hallelujah. हालेलुया। Just before the opening of the seals, और मोरों के खुलने से कुछ वक्त पहले there was 5 stars that lined up. 5 सितारे थे जो एक सीध में आए। Brother Branham said that the Indian astronomers and so forth from India, और भाई ब्रैनम कहते हैं कि इंडिया के जो माहिर फल्कियात थे, maybe some of them are here in Pakistan, और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान में भी माहिर फल्कियात हो, but he said they predict that the world is going to burst like a water bill. और उन्होंने तब नबूवत की थी, उन्होंने ये बात की थी कि जो दुनिया है वो एक तरबूज की तरह फट जाएगी। But he said that's a wrong prediction. लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं ये गलत नबूवत थी, But something great is going to happen. लेकिन एक खास चीज जरूर होना वाक़या है। He said, I believe it's the coming forth of the issue of God. और कहते हैं कि मैं यकीन करता हूँ ये खुदा की तरफ से कुछ अजीम जाहिर होना है। In other words, the full word of God is going to be born into manifestation. और दूसरे लफ्जों में वो कहते हैं कि खुदा का मुकम्मल कलाम जो है वो जिस्म की सूरत में हमारे अंदर आएगा, हमारे बदन में आएगा। And in another place, he said, just like 3 stars lined up for the birth of the bridegroom, Christ, और वो दूसरी जगह पर ये कहते हैं कि जिस तरीके से यीशु मसीह दुल्हा के जन्म पर 3 सितारे इकट्ठे हुए थे 2,000 years ago, 2000 साल पहले, and the wise men only saw 1 star. और जो मजूसी थे उन्होंने एक ही सितारा देखा, But it was really 3 stars lined up. लेकिन वो 3 सितारे थे जो एक सीध में थे। Father, Son, and Holy Ghost is बाप, God. बेटा, रूह कुद्दस, One God. और ये तीनों एक ही सीध में एक खुदा है। They followed that star और उन्होंने जो है उस सितारे की रहनुमाई में चले, right to the Messiah. और वो सितारा उनको ठीक मसीह के पास लेके आया, They didn't worship the star, और उन्होंने सितारे की जो है पूजा नहीं की, but they did worship the Messiah. लेकिन उन्होंने मसीह की पूजा की। Brother Branham was the star, और भाई ब्रैनम जो है वो सितारा था, pointing us to Jesus और Christ, यीशु मसीह तक हमें ला रहा था। the Son himself. यीशु मसीह जो बेटा खुद है। And yes, so he is. जी हाँ, Hallelujah. हालेलुया। And he said, as 3 stars lined up, announcing the oncoming birth of the bridegroom, Christ. और भाई ब्रैनम फरमाते हैं कि जैसे 3 सितारे एक सीध में आए और उन्होंने यीशु मसीह के जन्म का ऐलान किया, These 5 stars have lined up, और ये 5 सितारे जो हैं एक सीध में आए, announcing the birth of the bride. और ये जो है दुल्हन के
सुने गौर से, जो रैप्चर है ये मुसलसल चलने वाला अमल है। आमीन। If you want to be part of the rapture, और अगर आप रैप्चर का हिस्सा होना चाहते हैं, do you? आप होना चाहते हैं, कितने होना चाहते हैं? You've got to want it more than anything else. आपको जरूरत है कि किसी भी चीज से ज्यादा इसको चाहें। You've got to be willing to Amen. watch and pray. और आपको जागते रहने और दुआ करने की जरूरत है। You've got to recognize your day and its message. आपको अपने वक्त और उसके पैगाम को पहचानने की जरूरत है। You must have an ear to hear the bridegroom call. और जब दुल्हा पुकारे तो आपके पास कान होना चाहिए जो सुने। If you want to be a part of the rapture, और अगर आप रैप्चर का हिस्सा होना चाहते you हैं, must first of all recognize the process. पहले नंबर पर आपको इस सिलसिले को जो है प्रोसेस को पहचानने की जरूरत है। What is the process? ये प्रोसेस है क्या? A shout, a voice, a trump. और ये प्रोसेस जो है एक ललकार है, एक आवाज है और एक नसीहा है। The coming of the Lord is now in process. और खुदावंद की आमद जो है अब वो प्रोसेस में मौजूद है। I said the coming of the Lord is already in process. और मैं फिर कह रहा हूं कि खुदावंद की आमद जो है पहले ही इसका आगाज हो चुका है। We are right now living in the coming of the Lord. हम जो है खुदावंद की आमद में जी रहे हैं। Amen. And if you're going to be a part of the process, और अगर आप इस सिलसिले का हिस्सा हैं, you must get in the process. तो फिर आपको इस सिलसिले में आना पड़ेगा And then you become part of the और process. फिर इस सिलसिले में जुड़कर हिस्सा बनना पड़ेगा। And the processor himself is inside you. और फिर जो प्रोसेसर है जो इस सिलसिले को चला रहा है वो आप में आ जाएगा। God has a process. और खुदा का एक सिलसिला है God is the processor. और खुदा खुद इस सिलसिले को चलाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। All right. Yes. The Holy Ghost baptism. Yes, sir. पाप रूह का बपतिस्मा, जी हाँ जनाब। Everything you have need of और जिस भी चीज की आपको जरूरत है, this life's journey is in you. Even the rapture, right in you then. और पाप रूह का जो बपतिस्मा है ये सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है इस जमीनी जर्नी में। और रैप्चर खुद आपके अंदर मौजूद है। Now in Revelation chapter 1 and verse 7, आप मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, Brother Branham here in the church age book और भाई ब्रैनम यहाँ कलीसिया के जमानों की किताब में gives the divine revelation of this scripture. और इसके अंदर जो है वो कलाम मुकद्दस की इलाही तर्जुमानी करते हैं, मुकाशवा पेश करते हैं Or the divine interpretation of this scripture. या उसकी इलाही तफसीर को पेश करते हैं। Revelation 1:7. मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। Now be real careful. और अब इस आयत को बड़े ध्यान से सुने Listen closely. और बहुत ध्यान लगाकर सुने। Behold, he cometh with clouds, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है and every eye shall see him, और हर एक आंख उसे देखेगी and they also which pierced him, और जिन्होंने उसे छीना था, and all the kindred of the earth shall wail because of him. वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। Even so, amen. बेशक आमीन। Now the prophet gives the interpretation. और अब जो है नबी इसकी तफसीर करते हैं। He is coming. वो आ रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है, God is coming. खुदा आ रहा है, The prophet is वो coming. असली नबी आ रहा है, The priest and the king is coming. वो सरदार काहिन और बादशाह आ रहा है, The all in all is वो coming. सब कुछ में जो सब कुछ आ रहा है। Even so, Lord Jesus, come quickly. Amen. अब है खुदावन जल्द आ, आमीन। He is coming. वो आ रहा है, He is coming in the वो clouds. बादलों के साथ आ रहा है, Clouds of glory as when he was seen upon the Mount of Transfiguration. और उन जलाली बादलों के साथ आ रहा है जैसा उसे सुनते तब्दीली के पहाड़ पर देखा गया। And his garments were shining as the power of God enfolding him. और जैसे और उसकी पोशाक जो है वो चमक रही थी वहां पर, जबकि खुदा की कुव्वत उसको जाहिर कर रही थी। And every eye shall see him. और हर एक आंख उसे देखेगी। Now in the church age book, और अपनी कलीसिया
Brother Branham himself put capital letters every I. और भाई ब्रैनम ने इस किताब में जो एवरी लफ्ज है उसको बड़े लफ्जों में लिखवाया, हर एक आंख, Every eye shall see him. हर एक आंख उसे देखेगी। That means this is not the rapture. और अब भाई ब्रैनम कहते हैं हर एक आंख देखेगी, इसका मतलब ये रैप्चर नहीं। This is when he comes to take over his rightful place as world ruler. ये वो आमद है जिसके अंदर वो दुनिया का हुक्मरान होकर आएगा। Don't get your scriptures mixed up. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि अपनी जो आयतें हैं उनको मिक्स ना कर बैठे। The rapture coming of the Lord और जो खुदावंद की रैप्चर वाली आमद है, is taking place now. ये जो है ये अब वाक़या हो रही है। Every eye does not see him. और रैप्चर में हर आंख उसे नहीं देखेगी। No. जी नहीं, It's a secret coming of the Lord. ये एक खुफिया आमद है खुदावंद की। It's revealed only to those who are part of it. और ये सिर्फ उन तक होती है जो उसका हिस्सा है। Hallelujah. हालेलुया। Study your church history. अपनी कलीसियाई ज़मानों की किताब का मुतालिया करें। Brother Branham said you'll find it all drawn out in simplicity in my book. और भाई ब्रैनम ने कहा आप ये सारी बातें बड़ी सादगी से मेरी किताब में हासिल कर लेंगे। It comes from God and not from my thinking. और भाई ब्रैनम ने कहा कि ये मुझे खुदा की तरफ से मिली है, मेरी अपनी सोच नहीं। This is the interpretation of this. और ये बाइबल मुकद्दस का जो है तर्जुमान है, इसकी तफसीर है। I like what Brother Billy Paul did one time. और मुझे बड़ी पसंद आई ये बात जो भाई बिली पॉल भाई ब्रैनम के बड़े बेटे ने की। And he came and gave his testimony more than once in my little church in Columbia. और हमारे चर्च कोलंबिया के अंदर वो एक से ज्यादा मरतबा आए और अपनी गवाही पेश की। He would take a spoken word book. और वो अपनी जो है कलाम जो अपनी फरमूदा कलाम की किताब थे वो लेते थे भाई ब्रैनम की किताब, He would open it up. और वो जो है बाइबल में रख के उसको यूं खोलते थे Both books are open. और दोनों किताबों को यूं खोल देते थे He laid his Bible out like this. और वो बाइबल को यूं बाहर रखते थे। And he said, this is like the front sights and the rear sights of a rifle. और वो कहते हैं कि ये बंदूक का घोड़ा है और नहीं है। But you got to line them up. अब आपको जो है दोनों को बराबर सेट करना पड़ेगा Line up the spoken word with the written word. और जो फरमूदा कलाम है उसको लिखे हुए कलाम के ऊपर बिठा लें Line up the written word with the spoken word. और जो लिखा हुआ कलाम है उसको फरमूदा कलाम के साथ जोड़ दें। Now this is me. और अब ये मैं हूँ। When you line up the sights on the rifle, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपने घोड़े को और जो क्या कहते हैं नली को बिठा लेते हैं you don't point that rifle at your brother तो जो है इनको अपनी बंदूक को सेट करके अपने भाई की तरफ नहीं करते or your sister. या अपनी बहन की तरफ नहीं करते, You point it at the devil. बल्कि इसे अब्लीस की तरफ कर देते हैं। हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया। One another. एक दूसरे से मोहब्बत करें The action of God never breaks us up. और खुदा का जो अमल होता है वो कभी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं करता, The action of God brings us together. बल्कि खुदा का अमल जो है हमें एक साथ लेकर आता है। Quoting your prophet. और तुम आपके नबी के He मुताबिक said if you can't say something good about anybody, don't say anything at all. और नबी ने फरमाया अगर आप किसी भाई के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो बेहतर है कुछ ना कहें, We only have one enemy, क्योंकि हमारा एक ही दुश्मन है and that's the devil. और वो इब्लीस है। And Brother Branham said, I am my worst enemy. और भाई ब्रैनम ने अपनी तरफ इशारा करके कहा अपना सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूँ। Would you like to know who your worst enemy आप is? जानना चाहते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? Look in the mirror. तो फिर इस आईने में देखें, It's you. ये आप खुद हैं, It's your doubts. ये आपका शक है, It's your slothfulness. ये आपकी सुस्ती है, It's your laziness. ये आपकी सुस्ती है It's your indifference. और ये आपके तफरीके हैं। When God speaks, क्योंकि जब खुदा बोलता है He wants reverence. तो वो चाहता है कि ताज़ीम में कबूल हो। Brother Branham said it's more than just bubble dancing. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये सिर्फ झूमने से बढ़कर कुछ है, That's the blessings of the Lord. ये खुदावत की असल बरकत है। We're talking about the presence of the Lord. हम खुदावत की हजूरी के बारे में बात कर रहे हैं। It's one thing
recognize that you're in the presence of the Lord. कि आपको ये पता चलता है कि आप खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। They asked Brother Branham, उन्होंने भाई ब्रैनम से सवाल किया, when you're in the presence of that angel, और जब आप उस फरिश्ते की हजूरी में होते हैं why don't you ask him this? तो आप फरिश्ते से ये क्यों नहीं पूछते? He said, in his presence. और भाई ब्रैनम ने कहा, जब मैं उसकी हजूरी में होता हूँ, I'm just waiting for him to talk to me. मैं तो इस इंतजार में होता हूँ कि फरिश्ता मुझसे बात करे। हालेलुया। When those 6 dreams was brought to Brother Branham और जब 6 ख्वाब जो है भाई ब्रैनम के सामने पेश किए गए, over a period of time, और एक वक्त के दौरान, एक अरसे वक्त के दौरान जो है वो लाए गए सामने, and then those 6 dreams were capped off with a vision. और उन जो 6 ख्याल थे उनको एक सातवीं रोया के साथ पूरा किया गया, And a great clap of thunder, और एक अजीब गर्ज आई, or a great explosion. जहाँ एक धमाका हुआ। Brother Branham said, he said, I was numb for days. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैं कई दिनों तक सुन रहा जब रोया आई उन पर ये, Even I wasn't myself और मैं अपने आप में नहीं था, in the presence of the Lord. और खुदावंद की हजूरी में Think about it. ऐसा होता है। सोचें, That was the coming of the Lord for those seals to be opened. और फिर इसके बाद जो है खुदावंद की आमद हुई कि वो उन मोहरों को खोल दे, To bring the revelation of the presence of the Lord to us. कि उसकी हजूरी का मुकाशफा हमारे दरमियान जाहिर कर दे, How we ought to be reverent. और हमें किस कदर ताज़ीम में होना चाहिए, How we ought to recognize and be serious. और हमें कितना ज्यादा ताज़ीम और संजीदगी में होना चाहिए। We must be more sincere. हमें ज्यादा संजीदा होना चाहिए। As I point my finger out at you, और जब मैं आपकी तरफ अपनी उंगली कर रहा हूँ, I've got 3 more pointing back to me. तो 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं, My thumb is pointing up to the और Lord. मेरा अंगूठा खुदा की तरफ है। And I'm telling you in the name of the Lord, और मैं खुदावंद के नाम में आपको ये बात कह रहा हूँ, not just you, सिर्फ आपको नहीं, but we बल्कि हम सबको, must be more sincere. हमें मसीह संजीदा होने की जरूरत है। We are now living in the coming of the Lord. क्योंकि हम खुदावंद की आमद में जी रहे हैं। Now again in the church's book, और दोबारा अब कलीसिया ज़मानों की किताब में भाई ब्रैनम कहते हैं, I believe this is important. और अब बहुत ध्यान से ये बात सुने, They will receive it at the resurrection, और वो जो है उसे जी उठने पर कबूल करेंगे, not having previously received it as a member of the bride. क्योंकि उन्होंने पहले दुल्हन का हिस्सा होते हुए उसे कबूल नहीं किया था। Now he's talking about those that are coming forth at another resurrection, not ours. और अब जो है यहाँ पर नबी उस दूसरी जी उठने के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हर आंख देखेगी। John 5:28 through 29. और ये यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब उसका 28वां बाब 28वीं आयत 29वीं आयत है। Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice. और दाएं मत्ती की अंजील निकाले उसका 5वां बाब And shall 5वां बाब उसकी 28वीं आयत और 29वीं आयत। now Yes. all that are in the graves is not hearing this message. और जितने आज कब्र में बैठे हैं या पड़े हैं वो इस पैगाम को नहीं सुन रहे, It's not for all that's in the grave. और ये उनके लिए नहीं है यूहन्ना की अंजील 5वां बाब, It's only for the elect. बल्कि ये जो है ये चुने हुओं के लिए है। Listen closely. और जरा गौर से सुने, यूहन्ना की अंजील 5वां बाब है, The prophet has given us the divine interpretation
translation. और नबी जो है वो हमें इसकी इलाही तर्जुमानी दे रहा है, तफसीर दे रहा है। St. John chapter 5, verse 28 and 29. और यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 28वीं आयत से तलावत करेंगे। Marvel not at this, for the hour is coming in the which all, and Brother Brad's got that in bold letters, capital letters, all. इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice. अब यहाँ पर जो all है सब इस्तेमाल हुआ है, भाई ब्रैनम ने इसको कैपिटलाइज किया है। And shall come forth. और जो है वो बाहर निकलेंगे। They that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की कयामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की कयामत के वास्ते। Brother Branham says this. अब भाई ब्रैनम ये बात कहते हैं, Now we all know that John 5:28 and 29 is not the rapture. और अब हम ये सब जानते हैं कि ये जो आयत है यूहन्ना की अंजील 5वां बाब ये रैप्चर नहीं है। For only the dead in Christ will arise when from the graves at this time, along with the living bride who is on the earth. क्योंकि जब रैप्चर होगा तो मसीह में वो जो मुए हैं, सिर्फ जो मसीह में मुए हैं कब्रों से जी उठेंगे इस दुल्हन के साथ जो जमीन पर जिंदा मौजूद होगी। Again, that's from the church age book. और ये जो कोट है ये कलीसिया ज़मानों की किताब से है। Now, that is all the quotes that I have chosen to present to you this morning. और ये वो कोट्स हैं जो आज तक मैंने चूज किए कि मैं आपके साथ शेयर करूं। But let me just by inspiration now pass a few comments. और अब मैं इलाही तहरीक के वसीला कुछ बातें करने लगा हूं। Because our subject क्योंकि हमारा जो अनुमान है is the unrecognized presence of Jesus Christ. यीशु मसीह की हजूरी जो पहचानी नहीं गई। Our subject this morning in this little Sunday school lesson और इस संडे स्कूल सबक के अंदर हमारा जो सबक है वो ये है is recognizing the process of the coming rapture in church. और ये जो इसका जो मुतालिया है वो ये है कि रैप्चर पे जो कलीसिया जाए वो अपने प्रोसेस को पहचान ले। Becoming the Son of Man coming. और इब्ने आदम की आमद को समझ ले। The appearing. और उसके जाहिर होने को समझ ले। Hallelujah. हालेलुया। Now, You are closing. I realize that this is the last message that I'll be privileged to minister to the congregation. और अभी मेरे को एहसास है कि ये आखिरी पैगाम है जो मैं यहाँ पाकिस्तान की अभी कलीसिया में दूंगा। And then we have a baptismal service. और इसके बाद जो है बपतिस्मा की इबादत है। And then later this evening, और फिर इस शाम में I'll have the great honor of speaking just to the ministers. और फिर मेरे पास मौका होगा कि मैं खादियों के साथ बातचीत करूंगा। And I'm going to say things to the ministers that I couldn't say here. और मैं खादियों से कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मैं जनरली यहाँ नहीं कर सकता। But I've got confidence in the ministry. और मुझे खादियों पर पूरा एतमाद है। And I'm sure that they'll know how to rightly divide the word of God to you. और मैं यकीन करता हूँ कि वो आगे चलकर खुदा के कलाम को बिल्कुल हिस्सा आप तक पहुँचाएंगे। I believe there is a true fivefold ministry. और मैं ईमान रखता हूँ कि एक सच्ची 5 खिदमतें मौजूद हैं। Amen. आमीन। Questions and answers on the seals. और मोरों पर सवालात और जवाबात में Brother Branham was asked the question, और भाई ब्रैनम से ये सवाल किया गया, will the bride have a ministry before the rapture? क्या रैप्चर से पहले दुल्हन की कोई खिदमत होगी? He said, sure, certainly. उसने भाई ब्रैनम ने कहा यकीनन खिदमत होगी। And that's what's going on right now. और वो खिदमत इस घड़ी चल रही है। It consists of apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. और इस खिदमत के अंदर रसूल, मुबश्शिर, नबी, उस्ताद और पास्टर हैं। But it will be so simple. लेकिन ये इस कदर सादा होगी। Okay. सुने, Now, we are also warned in these last days और इन्हीं दिनों के बारे में हमें खबरदार किया गया that the two spirits, कि 2 रूहें, the deceiving spirit of the enemy
रूह है and the revealing Spirit of God would और be कलाम को आश्कारा करने वाली जो रूह है खुदा की, so close together और ये दोनों इतनी मिलती जुलती that होगी, it would deceive the very elect if possible. अगर मुमकिन हुआ तो परवसीतों को भी गुमराह कर दें। Hallelujah. हालेलुया। So we must hear the voice of God इसलिए हमारी जरूरत है खुदा की आवाज को सुने, for ourselves. खुद खुदा की आवाज को सुने And we must study the scriptures for ourselves. और खुद खुदा के कलाम का मुतालिया करें। How would you know whether or not I'm preaching the message of the hour if you haven't heard the message of the hour? और आपको कैसे पता कि मैं वक्त के पैगाम की मनादी कर रहा हूं अगर आपने वक्त का पैगाम खुद नहीं सुना? How would you know whether I'm speaking according to the word of God और आपको कैसे पता कि मैं खुदा के कलाम के मुताबिक मनादी कर रहा हूं if you haven't read the word? अगर आपने ये कलाम पढ़ा नहीं? So we all must be more sincere. इसलिए हमारी जरूरत है कि हम मजीद संजीदा हो जाएं। There's 3 ordinances left in the church. और 3 मेन काम जो है कलीसिया के लिए दिए गए। Only 3 major three main ordinances left to the church. 3 मेजर काम जो है कलीसिया को सौंपे गए। Water baptism in the name of the Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा, Communion पाकीशा and foot washing. और पाँव धोना। Now, I just want to take a little inventory here. और अब मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ This is not to make anybody look bad, और ये इस वजह से नहीं है कि मैं किसी को छोटा दिखाना चाहता हूँ but just for my information. और ये मैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाहता हूँ। How many in this little audience this morning और इस जमायत now have also with that communion participating in foot washing? और कितने हैं जो पाँव धोने में शरीक होते हैं? Wonderful, wonderful. बहुत खूब, खुदावंद आप सबको बरकत दे। Thank you. शुक्रिया। In the keeping of these 3 simple ordinances, और इन 3 कामों को बड़ी सादगी से करते हुए we must do all 3 with reverence. और इन तीनों को हमें बड़ी संजीदगी के साथ करना है। आमीन। And I want to commend this church this morning for your reverence. और मैं आज सुबह इस कलीसिया को आपकी संजीदगी और ताज़ीम के लिए आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। I don't see anybody asleep, और मैं किसी को भी सोते हुए नहीं देख रहा and I am closing. और अब मैं बंद करने लगा हूँ। Okay. ठीक है। Brother, you say continue. Okay. Now, I want to commend you for this lovely church. और मैं आपको इस कलीसिया के लिए आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। And it's a real honor for me to be here in this assembly. और इस असेंबली में होना मेरे लिए एक शर्फ की बात है। But I must also deliver my soul. लेकिन जो मेरे दिल में खुदा ने बात डाली मुझे वो भी कहनी है। If I don't express what's on my heart, I'm a hypocrite. और अगर खुदा ने मेरे दिल में कुछ डाला मैं नहीं कहता तो फिर मैं क्रियाकार हूँ। I didn't come here for popularity. क्योंकि मैं यहाँ मशहूर होने नहीं आया I didn't come here for money. और ना ही मैं यहाँ पैसों के लिए आया I didn't come here for women. और ना ही यहाँ मैं किसी औरत के लिए आया हूँ। I come here to encourage you to more thoroughly recognize your right. और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि Follow me as I follow Christ. मेरी पैरवी करो जैसे मैं मसीह की पैरवी करता हूँ। Brother Branham set an example. और भाई ब्रैनम ने हमारे लिए एक मिसाल सेट की है। His church was an example. उसका भाई ब्रैनम का चर्च जो है वो हमारे लिए एक मिसाल है। Brother Branham did not go from church to church, setting every church in order. और भाई ब्रैनम एक से दूसरी कलीसिया में नहीं किया कि सबको तरतीब दे, No. नहीं, But he set his own church in order. बल्कि भाई ब्रैनम ने अपनी कलीसिया को तरतीब में किया। And that's your example. और वो चर्च और वो तरतीब आपकी मिसाल है।
आमीन। In one place, Brother Brennan was praying, और एक जगह भाई ब्रैनम दुआ कर रहे थे and he said something like this: और भाई ब्रैनम ने यूं इस तरीके से बात कही Lord, make me an example to the examples. और भाई ब्रैनम ने कहा खुदावन मुझे तमसीलों की तमसील बना दे, मिसाल बना दे लोगों के लिए। And we believe he was an example in our day. और हम मान रखते हैं कि हमारे जमाना में वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। For those of you who read your Bible, आप जो अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं in the book of Revelation, मुकाशवा की किताब में, now please, don't move it around. Let's be reverent. चलना फिरना बंद करें थोड़ा। शुक्रिया। We're a very nice congregation. खुदावन आपको बरकत दे, अच्छी जमात And है। I've noticed, और मैंने ये चीज देखी है always at the closing part of the service, हमेशा इख्तितामी हिस्से पर, is whenever there's a little confusion. ये इख्तितामी हिस्से पर जो है अफरा तफरी फैल जाती है Because the devil don't want you to consider the end of my conversation. क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि आप आखिरी जो बरकत के लम्हे होते हैं वो ले लें। Hallelujah. This church ये कलीसिया has been dedicated to the worship of the Lord Jesus. ये कलीसिया यीशु मसीह के लिए मखसूस की गई है कि उसकी इबादत करें। Has it? क्या ऐसा ही है? I'm asking the pastor. मैं पास्टर साहब से बात कर रहा हूँ, I'm asking the deacon. मैं डीकन से बात कर रहा हूँ। Has this church been dedicated to the worship of the Lord Jesus? ये खुदावंद यीशु मसीह की इबादत के लिए मखसूस है। Okay. जी हाँ, Brother Branham said, वही ब्रैनम ने कहा you should never even whisper in here unless it is absolutely necessary. भाई ब्रैनम ने कहा कि जब चर्च के मकाम में हो तो आपको जब तक बहुत जरूरी नहीं हो किसी के कान में भी बात ना करें। If you're whispering to your neighbor, और अगर आप अपने साथ वाले के कान में बातें कर रहे हैं, you and your neighbor are not hearing what the preacher is saying. तो फिर आप दोनों नहीं सुन रहे कि खुदा का बंदा क्या बात कर रहा है You miss the word. और आप इस तरीके से कलाम को खो देते हैं। And sometimes if you miss just one word, और बाज़ औक़ात जब आप एक भी लफ्ज़ को खो देते हैं you're confused. तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। And the devil is the author of confusion. और ये कंफ्यूजन का जो बानी है वो इब्लीस है। When I go to Africa जब मैं अफ्रीका जाता हूँ, ध्यान से जरा सुने, and I preach to literally thousands at one time in Africa. और अफ्रीका में हमारी जमात हजारों लोगों पर एक ही बात में मुश्तमिल होती है, But they bring me on the scene like I was some great, like I was the Lord Himself. और वो मुझे इस तरीके से सीन पे लेके आते हैं जैसे मैं खुद ही खुदावंद हूँ। Brother Branham didn't like it. और ना ही भाई ब्रैनम को ये बात पसंद थी, He wanted reverence. बल्कि भाई ब्रैनम चाहते थे कि सब संजीदगी में रहे। I've seen pastors in Africa और मैंने अफ्रीका में ऐसे पादरी देखे हैं that exalted themselves जिन्होंने खुद को इतना बड़ा कर दिया है instead of exalting Jesus Christ. और यीशु मसीह को बड़ा करने की बजाय वो खुद को बड़ा कर रहे And हैं। I've seen them fall terribly. और मैंने उनको फिर बड़ी बुरे तरीके से गिरते हुए भी देखा है। Do you know when Jesus rode into Jerusalem? आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए He rode in on a donkey. तो यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर दाखिल हुए। He didn't ride in a Cadillac. यीशु मसीह जो है किसी बड़ी शानदार गाड़ी में नहीं इंटर हुए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. And the donkey और वो जो बच्चा था गधे का, was just a carrier of the word. और वो जो गधे का बच्चा था वो सिर्फ कलाम को लाने वाला था। And I am just a donkey. और इसी तरीके से मैं एक गधे की मालिक हूँ। And any minister of the gospel और कोई भी अंजील का खादम is just a servant. और वो सिर्फ एक नौकर है, खादम है। We must point to the Lord Jesus. हमारी पहली कोशिश यीशु की तरफ इशारा करना है। Now, अब I'm looking for a young, willing servant of the Lord.
मैं खुदा के किसी खादम की तरफ देख रहा हूँ, कोई सामने आ रहा है। And I'm pointing my finger at this young man right here. भाई Right behind you. और पीछे जो बच्चा बैठा है सामने, बेटा इधर आता है। Yeah, come. Let's get back the camera. Look, No, no, वो आ जाए। And this young man is going to be, I'm going to use him as an illustration. और मैं जो है इसको जो है एक तरीके से इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको कुछ समझा सकूं। Are you willing to be a donkey for the Lord? सलाम के लिए गधा बनने को तैयार हैं? Would you? तैयार है भाई? Would you like to be in that donkey that Jesus rode on when Jesus was here? अगर वो गधा बनना पड़ जाए जिसमें यीशु मसीह बैठा था तो तैयार हो? Would you like to be in that donkey? क्या? Okay. Then get down on all fours. और जैसे जानवर नहीं बनते Like a जाते, donkey. ऐसे जैसे जानवर नहीं बनते जाते। Okay. Now, we've got a picture of a little donkey. और अब जो है हमारे सामने जैसे एक जानवर होता है, गधा होता है, उसकी एक इलस्ट्रेशन है, And तमसील है। this is the donkey that Jesus rode into Jerusalem और on. अब समझ लेंगे ये वो गधा था जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठ के यरूशलेम में दाखिल हुए And he was revealing himself as the king. और वो जो है खुद को बादशाह के तौर पर जाहिर करते हुए दाखिल हुए। Hallelujah. हालेलुया। Yeah, there we go. Yeah, that's it. That's good. I'm not going to keep you on that position too long. मैं ज़्यादा देर तक तेरे को ऐसे नहीं रखूंगा। Yeah. But now, after Jesus gets on this donkey, और जब यीशु मसीह जो है गधे पर बैठ गए, I don't want this donkey down on his knees. और मैं नहीं चाहता कि वो अपने कदमों पे यूं ही लेटा रहे। Our brother, Brother Akub, observed that this donkey was first on his knees. और भाई याकूब ने देखा कि वो डोंकी जो पहले अपने घुटनों पे थे। And every donkey ought to go to their knees in the presence of God. और यीशु मसीह की हजूरी में हर गधे को अपने घुटनों पे होना